Yes, I was telling about the bond angle, and now the hybridization sp3d. So how to know whether sp3d hybridization will take place or not? So first of all, you calculate total valence electron of all atoms, including central atom and surrounding atoms. Okay, and after that total valence electron you divide by 8. If you divide 8, then whatever quotient is coming and whatever remainder is there, you find out. If q plus r by 2, quotient plus remainder by 2 is 5, then hybridization is sp3d. Okay. Now question arises, if q plus r by 2 is 5, there may be possible q is 5, r by 2 is 0, or q is 4, r by 2 is 1, q is 3, r by 2 is 2, q is 2, r by 2 is 3. Means 2 bond pair, 3 lone pair, 3 bond pair, 2 lone pair, 4 bond pair, 1 lone pair, 5 bond pair and 0 lone pair. So these are possibilities for this type of hybridization. Okay. Now 5 bond pair, 0 lone pair, if you see, so these are the examples: PCl5, PF5, SbF5, PCl2F3, PCl3F2, XCO3F2. Okay. And 4 bond pair, 1 lone pair examples, these all will come. Clear? In exam, they don't tell you give example from here. They will give these questions and ask you what is hybridization, shape, okay, and arrangement of atoms. So that will be asked, bond angle, etc. Now 3 plus 2, if it is 4 plus 1, the shape is seesaw shape. Have I told you this shape? Yes, sir. We had discussed about it. So if you have 5 lone pair and 0 bond pair, then your geometry will be trigonal bipyramidal geometry. Okay, the geometry will be like this, trigonal bipyramidal geometry. So suppose let us take PF5. P will be here and F will be surrounding atom. Okay, here F, 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 and F and F. So these are the F fluorine atom. So these fluorine, 3 fluorines are in equatorial bond. These are called equatorial bond. And these two are called axial bond. Okay. So equatorial bond, these are axial bond. So these equatorial and axial bonds are there if they are 5 bond pair and 0 lone pair. Okay. Now suppose geometry is like that, 4 bond pair and 1 lone pair is there. So 4 bond pair, 1 lone pair is there. The question is that if lone pair is there, lone pair will be there in axial position or equatorial position. That is the question. Okay. Suppose you are taking SF4. So lone pair is in equatorial position. Okay. So you can note down in trigonal bipyramidal geometry, you can note down in trigonal bipyramidal geometry, TBP geometry, trigonal bipyramidal geometry, the double bond and lone pair always lie at the equatorial position. At the equatorial position, in order to have maximum stability. In order to have maximum stability. सर एक बार वो स्टेटमेंट रिपीट करेंगे? स्टेटमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑलवेज लाई
at equatorial position. इससे पहले in case of trigonal bipyramidal geometry in TBP geometry, double bond and lone pair always lie at the equatorial position in order to have maximum stability. Okay. ठीक है, हाँ सर. तो ये याद रखो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, जेई मेन जेई एडवांस। ये नंबर वन, रूल नंबर वन लिख लो, और नंबर टू लिखो, more electronegative surrounding atom, more electronegative surrounding atom in TBP geometry, takes the axial position. Okay, these 2 points are very much important. From this many questions are coming, JEE main, JEE advanced, in KVPI, in all exams the questions will come from these 2 points. Okay, now why this will happen? This is the fact I told you, reason behind this fact. Okay, this is made a rule, that rule is known as Bent's rule. Okay, this is made a rule, the rule is known as Bent's rule. Now let me complete this all paragraph. If 4 bond pair, 1 lone pair is there, lone pair will acquire the equatorial position. Reason I am not telling, first let me complete this all. What happened, first you learn the facts, what happened, then why happened, reason behind that we'll discuss. So if lone pair lies in the equatorial position, it looks like seesaw. The shape will be seesaw. SF4 shape is seesaw. In your childhood days, you might have played seesaw in different park. Okay. So this is like seesaw shape, SF4. Okay. So similarly, for these all geometry, seesaw shape. Now 3 plus 2. If it is lone pair is 2, bond pair is 3. Suppose I am taking 2 lone pair and bond pair 3, and I am drawing the geometry in the side. So suppose 2 lone pair are there, and 3 bond pairs are there. 2 lone pair will lie at the equatorial only. This is the rule. It cannot lie in axial. If it comes to axial, then stability will be minimum, repulsion will be maximum. That's why. Now how repulsion maximum minimum, that we'll discuss. Okay. So you remember that if lone pair is there in TBP geometry, it will lie in the equatorial position. If it is equatorial and AB3 just like CLF3, it looks like T, like this. Okay, it looks like T. So the answer is T shaped. The geometry will be T shaped. Okay. So if 2 lone pair, 3 bond pair, shape will be T shape. And now suppose 2 bond pair and 3 lone pair. So as usual, if you have 3 lone pair, so 3 lone pair will acquire the equatorial position only. There are 3 equatorial positions, so 3 lone pair can come. If 3 lone pair comes in equatorial position, then your geometry will be AB, and this AB will be linear. This will be linear geometry. Why linear? Because lone pair will only cause distortion of shape. It will not participate in shape, because shape will come due to bond only. Due to bond pair, shape will come. So it looks like linear. If 3 are there in equator and 2B are in axis, definitely it will be linear geometry. Okay, this is linear geometry. Now is that clear? Sir, Tell me. sir, the lone pair, do the lone pairs come on the axial side anytime in any kind of bond? In TBP geometry, it will not come. In other geometry, it may come, but in TBP geometry, it will come in equatorial position. It will not come in axial position. Lone pair and multiple bond.
double bond, triple bond. Multiple bonds come in equatorial position. Okay. Now see. Sir, so for other geometries, it has to be axial, or it can be both axial or equatorial. In other geometry we will discuss later, but in this geometry it will be in equatorial. Okay. Now why Okay. in this geometry it will be equatorial, we will see. So actually the relative location of bond pair and lone pair is decided by Bend's rule. There is a rule. If we make a rule, it is easy to remember and understand. The Bend's rule says that the more electronegative atom prefers to stay in that position which has less S character. Okay. So out of the equatorial and axial bonds, whichever is less S character, the more electronegative atom will go there. Okay. And while the lone pair prefers to stay in the orbital where more S character. The lone pair will stay wherever his S character is more. S character means percentage of S character. Okay. So S character is more, wherever is more, lone pair will go there. Why like this? See, the lone pair generally from S. Suppose you take water, lone pair is coming from 2s2. The lone pair is coming from S subcell only. So if lone pair is coming from S subcell, okay, if S character is more, then lone pair will be enriched and stability will be more. So wherever S character is more, the lone pair will go there. Alternatively, it may be stated that for TBP geometry, the more electronegative atom prefers to stay in axial position, while the lone pair prefers to stay in equatorial position. Okay. So wherever is more electronegative atom, see, suppose surrounding atom is more electronegative atom, then central atom will be less electronegative. So if surrounding atom is more electronegative, central atom is less electronegative, then wherever is percentage S character is more, then it will go to the equatorial position, that is lone pair. Now suppose surrounding atom is more electronegative, the central atom is less electronegative. The central atom less electronegative means S character wherever is less, it will go there. So in axial position, S character is less. The question arises, in axial position why S character is less? See, so in TBP geometry we have hybridization sp3d. तो ये थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो. ओके, यू लिसन केयरफुली एंड विथ फुल कंसंट्रेशन. इन टीबीपी ज्योमेट्री वी हैव sp3d hybridization. ठीक है, sp3d hybridization कैन बी ब्रोकन लाइक दिस, sp2 प्लस pd. तो sp3 मतलब p2 प्लस p1, p3 हो गया, एंड d, तो sp2d, तो sp2 प्लस pd, तो sp2 प्लस pd. So this is the geometry. sp2 means this is trigonal planar. Okay, so sp2 trigonal planar, it has 3 hybrid orbital, pd is 2 hybrid orbital. Okay, so sp2 trigonal planar, so you see trigonal planar is in equatorial. देखो इक्वेटोरियल में ट्राइगोनल प्लानर है कि नहीं है, बोलो. तो इक्वेटोरियल में ट्राइगोनल प्लानर है, तो यहाँ देखो ट्राइगोनल प्लानर है इक्वेटोरियल में. तो इक्वेटोरियल में ट्राइगोनल प्लानर है, तो उसका ज्योमेट्री है, जो इक्वेटोरियल का ज्योमेट्री है, इसका है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो एक्सियल है उसका होगा pd हाइब्रिडाइजेशन. तो अगर इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका s कैरेक्टर है, लेकिन एक्सियल में क्या s कैरेक्टर है, pd है. pd मतलब s कैरेक्टर 0. तो एक्सियल में s कैरेक्टर 0 हो गया, इक्वेटोरियल में s कैरेक्टर है 33% है कि नहीं. तो all 5 hybrid orbital in sp3 hybridization are not equal, and the concept of unequal hybridization starts here. So the equatorial set orbital has sp2 hybridization, and while the axial set of orbital is pd hybridization. So that means pd hybridization, it is having d and p. Okay, so in PCl5 p and d hybridization is there, so here s character is less. So in equatorial s character is there, but in axial s character is not there.
So since equatorial S character is there, it will prefers to keep the lone pair with itself because lone pair is only S. So lone pair is controlled by one nucleus. देखो तो यहाँ पे लोन पेयर जो है वो वन न्यूक्लियस से कंट्रोल है, लेकिन बॉन्ड पेयर क्या है, टू न्यूक्लियस से कंट्रोल है। जो बॉन्ड है वो दो न्यूक्लियस ए बी के बीच में बॉन्ड है, उसका बीच में बॉन्ड पेयर है, दो न्यूक्लियस से कंट्रोल है। लोन पेयर क्या है, एक न्यूक्लियस से कंट्रोल है। ठीक है, तो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इसीलिए लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर जो है एस से आया है वो प्रीफर करेगा जहां एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में एस कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, और एक्सियल में एक्स कैरेक्टर है क्या, नहीं है सर। एक्सियल में एक्स कैरेक्टर नहीं है। अगर एक्सियल में एक्स कैरेक्टर नहीं है तो लोन पेयर वहीं रहेगा जहां उसका कंफर्टेबिलिटी रहेगा। तो लोन पेयर क्या करेगा, एस कैरेक्टर जहां है वहां रहेगा, मतलब लोन पेयर विल स्टे इन इक्वेटोरियल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. So first point is clear, lone pair will be there in equatorial position. Similarly, double bond, in double bond also electron density is more. If double bond electron density is more, it will try to stay wherever is electronegativity is more. So electronegativity is more wherever S character is more. So X character is more in equatorial. That's why double bond and lone pair will stay in equatorial position. This is clear. Okay. तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, व्हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम स्टे इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री एंड टेक्स एक्सियल पोजीशन। सी देखो, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल में जाता है कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इट सराउंडिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेंट्रल इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इजंट इट? एंड इट इज टोल्ड दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will come in equatorial position. So if more electronegative atom will come in equatorial position, less electronegative atom will come in axial position. So central atom is less electronegative in axial position, means surrounding atom must be high electronegative, isn't it? Tell me again, I tell you. देखो, So can you repeat this again? yes, I repeat. तो point number 2 जो है, ध्यान से सुनो, more electronegative atom surrounding atom will take in axial position. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम एक्सियल लेगा, मतलब सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़े क्या, हम लोग अभी पढ़े मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, जो सेंट्रल एटम जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में रहता है, और वो सेंट्रल एटम जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन में चला जाएगा। अभी अभी हम लोग पढ़े, अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में सेंट्रल एटम चला गया तो एक्सियल पोजीशन में क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया, क्योंकि इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया, तो एक्सियल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया। तो सेंट्रल एटम में एक्सियल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया तो सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ, ज़्यादा होना पड़ेगा ना। इज दैट क्लियर? सो सराउंडिंग एटम हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. So surrounding atom is more electronegative. One more reason I tell you why surrounding atom is more electronegative. Okay. Now you see, if you consider the equatorial and axial bond, equatorial bond and axial bond, if we consider equatorial and axial bond, the axial bond will be bigger than equatorial bond. Okay. The axial bond is bigger. ये जो axial bond है, this is bigger. एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है ये स्मॉलर होगा। ओके, तो एक्सियल बॉन्ड बिगर है, इक्वेटोरियल स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल में 3 बॉन्ड है, एक्सियल में 2 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड 2 बॉन्ड पे प्रेशर डाल रहा है, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड बिगर हो गया। और इक्वेटोरियल में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के लेगा अपने तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने तरफ लेगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ले लिया, तो इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एक्सियल में रहता है तो ये बॉन्ड लेंथ को बड़ा करता है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल में नहीं रहता है, ये बॉन्ड लेंथ को बड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्सियल पोजीशन लेगा। ओके, इज दैट क्लियर? तो Yes, sir. So you go through this, whatever I told you, all things are written here.
You go through these points, whatever I told you, you go through these points. Wait. Point A already I told you. Point B and next whatever is there, you go through this within 2 minutes. I'm coming. Okay, I'm coming within 2-3 minutes. Coming. Just go through this.
हाँ सर एक बार Sir, वापस what is the meaning of attached orbital? विच ऑर्बिटल? Attached orbital, sir. So it's given here. Sir, page 71, the first line. ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन. तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर ना. मतलब क्या होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d को हम स्प्लिट कर दिए, sp2 को इक्वेटोरियल में ले लिए, दिस इज इक्वेटोरियल, ठीक है. pd को एक्सियल में ले लिए, और तो pd में s कैरेक्टर नहीं है, तो pd में s कैरेक्टर नहीं है, तो s कैरेक्टर जिसमें कम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया एक्सियल में. एक्सियल में सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया, तो सराउंडिंग एटम का बढ़ गया, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा सराउंडिंग एटम में आएगा, तो मतलब एक्सियल में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया. तो सेंट्रल एटम में एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो सेंट्रल एटम में जब एस कैरेक्टर ज़्यादा है वो क्या करेगा, लोन पेयर डबल बॉन्ड को होल्ड करेगा. इज दैट क्लियर? तो ये all 5 orbital in sp3d hybridization are not equal, and the concept of equal hybridization failed in this theory. So Bend's theory says that hybridization is wrong in this part. Okay, starts here. So the equatorial set of orbital made of sp2 hybrid orbital, while axial is made of pd hybrid orbitals. So it is also sorted by the fact that pcl5 distance of pcl in axial is greater than pcl in equatorial. That is true. एक्सियल में पीसीएल का डिस्टेंस ज़्यादा है, बड़ा होता है, इक्वेटोरियल में डिस्टेंस कम होता है. क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सियल में उसका एस कैरेक्टर कम है, एस कैरेक्टर कम होने से, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा. ओके, और द ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल हैविंग सेम प्रिंसिपल एनर्जी sp_df, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही दिया. तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एस से एनर्जी ज़्यादा लगेगा अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है. दिस फॉलोज द ऑर्डर ऑफ प्रोक्सिमिटी ऑफ ऑर्बिटल्स टू द न्यूक्लियस. वी नो दैट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट्स द बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. ओके, more electronegative atom will attract the bond pair towards itself. Thus this kind of withdrawing electron will be easier when the attached orbital of it from the central atom consisting of minimum nil s character. मतलब एक्सियल में अटैच ऑर्बिटल मतलब क्या है, जो सराउंडिंग एटम का ऑर्बिटल है, ठीक है. मीन्स सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सराउंडिंग एटम का जो ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल एटम, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो इट विल हैव मिनिमम और नील एस कैरेक्टर, इसका एस कैरेक्टर नील होगा. हैंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्स द ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर और एक्सियल पोजीशन इन टीबीपी ज्योमेट्री. जो मैंने बताया वहीं पे यहाँ पे लिखा है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. मतलब एक्सियल में पीडी आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन पीडी आता है, इक्वेटोरियल में sp2 आता है. तो एक्सियल में अगर पीडी हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो उसमें एस कैरेक्टर नहीं है, तो एस कैरेक्टर नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का कम होगा तो सराउंडिंग एटम का ज़्यादा होगा. तो सराउंडिंग एटम का ज़्यादा होने से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करता है, वो चला जाता है एक्सियल में. ओके, तो ये हमारा क्लियर होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्ट्रक्चर. सपोज यू टेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स क्वेश्चन केम इन एग्जाम. तो PCl3F2 इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम?
PCl3F2 means we will think that fluorine may be in equatorial or fluorine may be in axial. But since fluorine is more electronegative than fluorine, and as per the Bend's rule, the more electronegative atom should occupy in the axial position. So 2 fluorine atoms should be in the axial position and 3 chlorine atoms will be in the equatorial position. Okay. Now suppose we have PCl2F3. Suppose you have F3, 3F. So 3F are there, let us keep 3F in equatorial, and 2 chlorine are there, let us keep 2 chlorine in axial. No, that is not correct. Suppose we think that instead of this structure shown here, we will make another structure saying that अभी तो 2:3 में है, तो हम ऐसे कर देते हैं 3 फ्लोरीन को हम क्या करेंगे, 3 फ्लोरीन को हम इक्विटोरियल रख देंगे, 2 क्लोरीन है, ये एक कैटेगरी का है, इसको एक्सियल में रख देंगे। अब क्लोरीन तो बड़ा आटम है, इसको एक्सियल में रखने से तो लॉन्ग बॉन्ड है तो होगा, लेकिन दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। So since fluorine are more electronegative, so more electronegative atom should occupy in the axial position. So first of all, axial position preference is for fluorine. So fluorine you keep in axial position. So fluorine you keep in axial position, you have kept, after 2 fluorine you kept, then you have left one more fluorine. Then there is no option, you have no other option. So that fluorine you have to keep in equatorial. Okay, after keeping 2 fluorine, the third fluorine will be kept in equatorial. But chlorine is always in equatorial. So chlorine is kept in equatorial. So this is the correct structure of PCl2F3. Okay. Similarly, all these structures you go through once, and just again within 2 minutes I am coming. You go through all these structures.
Sir? 1 minute. Yes, tell me. Sir, this bent is it kind of a geometry? Like in the note it is written that the Bent season t-shirt it is written, sir. Bent written where? Again, the bond pair is attached to 2 atoms, while the lone pair is attached to only 1 atom. Okay. Sir, in the note part. Sir, in the note part. Yes, I'm coming to sir in the note part. note part. I'm coming to that. So bond pair is attached by 2 atoms, lone pair is attached by 1 atom. Already I told you. Hence, the lone pair will try to come closer to nucleus. Only the s orbital can do easily. Hence, the lone pair prefers the orbital having more s character or the equatorial position in trigonal bipyramidal geometry. So based on the above explanation, the structure of some molecules with sp3d hybridization are shown. Okay, so sp3d hybridization are shown. The effect of lone pair on bond angle makes them bent, seesaw and T-shape. Okay, due to presence of lone pair, it may be seesaw or T-shape or bent. Bent means sometimes it is not linear exactly. It angle is might be less than 180, so that is called bent. Okay. So sir, it's like it's a geometry, bent geometry, like we say Bent is seesaw also, T-shape. yes, bent is also a type of geometry. Oh, okay, Okay. sir. For the So any examples like Examples will come here. Many examples are given. Whatever, all possible examples are given. So these two understood. Now this one I tell you. so what is the reason for the bending? A reason will come because of reason is lone pair repulsion always greater than lone pair bond pair repulsion, greater than bond pair repulsion. This is the main reason for all. So whatever wherever the example coming, we'll take the reasons with examples. Okay, one by one it will come. Now you see, now it is see, it is uh, it is CF3 thrice and CS3 twice. ODA plus 5. So if it is CF3 thrice and CS3 twice, but CF3 you see that CF3 is more electronegative. So first of all, first preference CF3 should go in axial position. So it is going in axial. So this structure is correct structure. CF3 you have to keep in axial. After that, if any left, that will come to equatorial. But CS3 will never go to axial. CS3, because hydrogen is less electronegative, it will not go to axial. It will stay in equatorial only. So this is the correct structure of this. In study package also one question is given based on this. Okay. So this is the structure of this type of molecule. Now suppose you take example of SF4. So we have discussed that lone pair should stay in equatorial. So SF4 it is coming in equatorial. So remaining F4 are there. So remaining F4
two axial positions are coming. So two axial position is not exactly 180. See, its bond angle is 179. So it is not exactly linear. It is slightly bent. Why the bond angle is 179? It is less than 180. Can you guess the reason? So the bending is in the opposite direction to the lone pair. So the lone pair must be repulsing. Yes, the lone pair is lying in the equatorial position, and the bond of axial will show repulsion, bond pair repulsion with equatorial position. Also bond pair, lone pair repulsion in this side. So lone pair is in equatorial. The repulsion between lone pair and bond pair is more. So this repulsion is more. Correct? This repulsion is more. Yes, sir. So these two repulsions are highest. And then this repulsion, bond pair repulsion, this one, and bond pair repulsion will be less. So if this side, left side repulsion is less, right side repulsion is more, definitely the bond will be slightly bent, and it will not be 180 exactly, it is 179. Is that clear? This is because of this reason only. Okay. Now next you see Yes, sir. SF, SF and F and F. This bond angle you see. This bond angle is 103. Why 103? Because here lone pair is there in equatorial. So this repulsion is more, lone pair bond pair repulsion. Then this repulsion. Suppose this is Y repulsion, this is X repulsion, and this is also Y repulsion. You have two Y repulsion, one X repulsion, but Y is greater than X. If Y repulsion, lone pair bond pair repulsion, is more than bond pair repulsion, means Y is greater than X. Here also Y is less greater than X, and 2Y is repelling. Okay, 2Y are repelling to 1X. So obviously this bond angle has to be less than 120, because you have three pair, the maximum angle is expected is 120. But because of this repulsion is more, it will be how much? 103 degree. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, Yes, sir. SF2Cl2. SF2Cl2 means whether chlorine will come in axial or fluorine will come in axial. Fluorine will come in axial. So fluorine is coming in axial. So this in exam question will come like this. SF2Cl2, whichever is axial, whichever is equatorial. So chlorine will be equatorial and lone pair is also equatorial. So this is the shape of SF2Cl2. Similarly, the shape of SF3Cl. So again fluorine will come in axial. So two fluorine is coming. After that one more left. So it will come to equatorial. One more chlorine is in equatorial. And lone pair has to be in equatorial. So this is the shape of SF3Cl. Sir, As Sir, in this structure, do the chlorine and fluorine compulsorily need to come on one side of the axial bond? Or fluorine can be on the opposite side also? chlorine may come here or here. Anything, both are identical. Na? No, sir. Uh, If the bond pair this, the lone pair this side, and instead of that place chlorine or fluorine. oh, this lone pair can come here also. If it will come here, fluorine comes here, fluorine comes here. You rotate. If molecule you rotate, it can come here also. You can show anywhere, here or here. No problem. Lone pair you can Okay, show sir. anywhere. That is identical Okay, structure. sir. If you rotate the molecule, that will come. Now you see here lone pair is given left side, here given right side, here given right side, here given right side, here given left side. That means you can write lone pair any side of the equatorial. Doesn't matter. Now see, you have ClF3. Okay, sir. ClF3 means you have ClF3 means two lone pair and three bond pair. So two lone pair must be in equatorial, that is final. So equatorial, and now three fluorine is there. So two fluorine axial, one equatorial. So this is T shape. This is T shaped. Okay.
Now this you have to create. It's not that you understand. So what you have to do now? You need to draw by yourself without seeing once. Okay. Now XCF3 plus. So XCF3 plus, if you count, okay, you will get 3 bond pair and 2 lone pair. So obviously lone pair will come in equatorial. So 3 bond pair comes in axial. Okay. So this will be also T-sept. Clear? Now XeO2F2. XeO2F2 if you take, you will find 4 bond pair. Here you will find 4 bond pair and 1 lone pair. So if you get 4 bond pair, 1 lone pair, so obviously lone pair in equatorial, multiple bond also in equatorial. And fluorine is more electronegative atom, that will be in axial. So fluorine is more electronegative than oxygen, na? So fluorine has to be in axial. So this is structure of XeO2F2. Now XeF2. In XeF2 you will find 2 bond pair and 3 lone pair. So 3 lone pair in equatorial, 2 bond pair in axial. Is that clear? ICl2 minus also same. ICN2 whole twice minus also same. In all case 2 bond pair and 3 lone pair. Here the bond angle is exactly 180. Why? Because lone pair are in 3 equatorial. If you apply vector, they are balanced, and bond pair in axial. So there will be repulsion in all sides, lone pair, bond pair, lone pair, bond pair, lone pair, bond pair. So 3 repulsion. For this also lone pair, bond pair, lone pair, bond pair, lone pair, bond pair, 3 repulsion. All are balanced. So this is exactly 180 degree. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. All 3 molecules are exactly 180 degree because all repulsions are equal and same magnitude in opposite direction, so they are balanced. Okay. Yes, tell me. So in the XeF3 plus structure, why is it is coming 180 degree? Why is there no bent structure over there? XeF3 T-sept na. So 3 bonds are coming like this. 3 bonds are coming like this. But there should be the lone pair, bond pair, and lone pair relation. So it will not be 90. It is less than 90. It will be around 87 degree. Since lone pair bond pair repulsion is more, this angle is less than 90. Your angle is not mentioned. It is around 87 degree will come. So bond pair will be less. T-sept मतलब ऐसे T. ऐसे करके आएगा T. ऐसे नहीं आएगा. ऐसे नहीं आएगा. थोड़ा बेंड होगा. तो ये बॉन्ड एंगल जो 90 हो रहा था, ये लेस देन 90 होगा. यहाँ पे 90 है. यहाँ पे 87 ऐसे कुछ आएगा. 87 पॉइंट समथिंग आता है बॉन्ड एंगल. ठीक है? Because lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion due to that reason. Okay. Yes. So next sp3d2 hybridization. In sp3d2 hybridization, one second. Yes, in sp3d2 hybridization, you see the steric number you count 1 plus 3 plus 2. It's coming 6. So your q plus r by 2 will come 6. Okay. So if steric number is 6, hybridization is sp3d2, you will find q may be 6, r by 2 may be 0, means 6 bond pair and 0 lone pair possible, or 5 bond pair, 1 lone pair possible, or 4 bond pair, 2 lone pair possible. 3 bond pair, 3 lone pair not there. Okay. Because total pair 6, here 6 bond pair and 0 lone pair, so the geometry will be octahedral. So 6 bond pair, 0 lone pair, octahedral means you will get SF6 like this, a square, and axial bonds are like this.
तो SF6. Excuse me, sir. Yes. For ZeF3 plus, I just now googled it. It was showing that it is not 87 or less than 90, but it is exact 90 degree. No, that is wrong. It is less than 90. I read some books, it is less than 90, not exact 90. In Google Okay, also sir. some people post wrong information. They assume something and they put. Actually, this is only human creation, na? So this is not created by all scientists. So we have to search authentic source to get the reliable information. Okay. So here see, suppose we are seeing the bond angle in SF4. All bonds are identical and all are axial and equatorial. You will find equatorial. This is 90. All equatorial are 90. So equatorial 90, and axial equatorial 90, and axial obviously 180. This is a straight line में आएगा axial 180. So in SF4 you will find the bond angle is exactly 90. Okay. So bond angle is exactly 90 in SF4. Why exactly 90? Because all are identical bond, equal repulsion. This is symmetrical molecule. This molecule is totally symmetrical. And one more thing you can see in this type of geometry, you will find the axial and equatorial are interconvertible. Axial and equatorial are interconvertible. Okay. मतलब क्या है? सर क्या अभी हम लोग XY प्लेन को मतलब इक्वेटोरियल मान रहे हैं तो हम लोग XZ या YZ प्लेन को भी इक्वेटोरियल मान सकते हैं, है ना सर? हाँ. इसको हम लोग रोटेट कर देंगे तो एक्सियल इक्वेटोरियल के जगह आएगा, इक्वेटोरियल एक्सियल के जगह आ सकता है. मतलब इसको हम एक्सियल ले रहे हैं, इसको ये दोनों को एक्सियल ले सकते हैं और ये चारों को इक्वेटोरियल लेंगे. ये दोनों को भी एक्सियल ले सकते हैं. इसको रोटेट करके एक्सियल को इक्वेटोरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है. मतलब XY प्लेन को एक्सियल ले रहे हैं, YZ को भी एक्सियल ले सकते हैं, Z प्लेन को भी एक्सियल ले सकते हैं. X एक्सिस को एक्सियल ले रहे हैं, Y एक्सिस को ले सकते हैं, Z एक्सिस को भी ले सकते हैं. ठीक है. तो सर यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर क्यों नहीं हो सकता, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा, 3 बॉन्ड पेयर लेंगे तो क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर में मिनिमम इसका 3 इलेक्ट्रॉन आएगा. 3 लोन पेयर लेंगे तो इसका क्या होगा? लोन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा. तो 6 3 सेंट्रल एटम में 9 इलेक्ट्रॉन हो गया. ठीक है. नॉर्मली सेंट्रल एटम भी चाहेगा ऑक्टेट कंप्लीट के लिए. ये ऑक्टेट कंप्लीट 9 नहीं होता है. ये होता है क्या है? होता है 12 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 6 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन. इस टाइप का होता है. इवन नंबर होता है. तो यहाँ पे तो ऑड नंबर आ गया ना, तो इसलिए नहीं हो रहा है. उसके बाद भी नहीं होगा क्योंकि उसके बाद ऑक्टेट वायलेट कर रहा है, तो उसके रीजन से होना मुश्किल है. तो ये एग्जाम्पल नहीं है, इस 3 टाइप का ही एग्जाम्पल. तो 6 + 0 हो गया. इसका 6 + 0 तो समझ में आ गया. ये हो गया इसका एग्जाम्पल. SF4 TCl6 XCO6 - XCO2F4. तो इसको अगर हम TV निकाल के बाई 8 करेंगे तो 6 आएगा. क्वेश्चन 6 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, कितना बॉन्ड पेयर पता चल गया, लोन पेयर 0 है. ओके. तो सपोज आइए XCF5 प्लस ले रहे हैं. लेट अस टेक एग्जांपल एंड फाइंड आउट. ठीक है. एक मिनट, इसका थिकनेस कम हो गया. लेट अस टेक XCF5 प्लस. XCF5 प्लस ये ले रहे हैं हम लोग. ओके. XCF5 प्लस लेने से क्या होगा, हम देखते हैं कितना इसका हो रहा है. XC का देखो, XC का 8 इलेक्ट्रॉन है. TB देखते हैं. फ्लोरीन का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. 7 × 5 35 हो गया.
प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस करो, तो 42 हो गया। तो 42 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा क्वेसेंट, मतलब 5 बॉन्ड पेयर हो गया। 2 रिमाइंडर मतलब लोन पेयर हो गया 1 लोन पेयर। ओके, तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है इसका। तो इसका 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, देखो सब में 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये फर्स्ट दो एग्जांपल देखो है कि नहीं। तो 5 बॉन्ड पेयर लोन पेयर में इसका लोन पेयर कहाँ आएगा? देखो इसका लोन पेयर हम लोग एक्सियल में रखे या इक्वेटोरियल में रखे एक ही बात है, क्योंकि इसका एक्सियल इक्वेटोरियल और इंटर कन्वर्टेबल, तो इसीलिए इसका सब तो 90 है, सिमेट्रिकल है, तो इसको एक्सियल में रख देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेंड्स रूल को वायलेट नहीं करेगा। ओके, तो ये इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा देखना है। तो बॉन्ड एंगल इसका एक्सियल इक्वेटोरियल का 90 होता है, तो ये 90 से कम हो गया। तो 90 से कम क्यों हुआ? क्योंकि पीछे से ये ज़्यादा रिपेल कर रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो शेप होगा, ये शेप कैसे आ रहा है? स्क्वायर पिरामिडल शेप, इसका शेप को क्या बोलेंगे? ऐसे ऐसे आ रहा। तो इसको अगर ज्वाइन करेंगे एक स्क्वायर पिरामिड आएगा, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड है ऐसे करके, और ऊपर एक बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड है इसका 1 2 3 4, सही है, ये 4 बॉन्ड है। अब ये जो 4 बॉन्ड है, ये 4 बॉन्ड को क्या करेंगे हम लोग, अगर रखेंगे तो ये कैसे शेप दिखेगा? ये स्क्वायर पिरामिडल शेप दिखेगा। इज दैट क्लियर? शेप तो क्लियर है ना? Yes, sir. तो इसमें शेप क्लियर तो है। इसमें लोन पेयर इक्वेटोरियल पे नहीं है। हाँ, तो ये लोन पेयर देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सियल और इंटर कन्वर्टेबल ना, तो इसको इक्वेटोरियल रखने से एक्सियल में रखने से एक ही बात है। तो इसको हम लोग एक्सियल में अगर रखें तो पीछे से ये ज़्यादा रिपेल करेगा, तो ये जो स्क्वायर जो प्लेन है वो प्लेन का ऊपर रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये आगे आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। सपोज अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला पे हाई स्पीड विंड आ रहा है, तो अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है ना, तो ये क्या कर रहा है? उसका ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो प्रेशर डालने से ये क्या होगा? आगे आ जाएगा। आगे आएगा तो ये जो बॉन्ड एंगल पहले 90 था, आगे आने से क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कितना हो गया? 81.9 हो गया, ठीक है। कितना कम होगा वो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन कम होगा ये हम लोग गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी XCF4, ये दोनों सेम है शायद, XCF4 प्लस XCF4, ये IF4 है, ठीक है। XCF4 IF5 है, XCF5 प्लस है। तो अभी ये भी उस टाइप का शेप है, इसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल। इसका भी बॉन्ड एंगल 90 नहीं होगा, इसका एक्सियल इक्वेटोरियल 90 नहीं होगा। हाँ, इक्वेटोरियल 90 हो जाएगा, इसका इक्वेटोरियल 90 होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल 90 नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। अरे यहाँ पे बढ़ कैसे गया? हमारा तो कम हो रहा था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड इसका जो क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन और लोन पेयर सिंगल बॉन्ड रिपल्सन में कंपटीशन हो रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन क्या होता है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड रिपल्सन से ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, यहाँ पे होगा लोन पेयर सिंगल बॉन्ड रिपल्सन हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन हो रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा। तो क्या होगा? ये पीछे से रिपेल कर रहा है, ये आगे से रिपेल कर रहा है, लेकिन आगे का रिपल्सन स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर होने से इस साइड का बॉन्ड एंगल 91 होगा और नीचे साइड का बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली 89 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके बॉन्ड एंगल इसका आता है। तो XCF4 का बॉन्ड एंगल इसका एग्जैक्टली 90 होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जो पीछे से रिपेल कर रहा है, आगे से लोन पेयर रिपेल कर रहा है, ये तो बैलेंस हो गया ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स ये काउंटर बैलेंस हो गया। तो ये जो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे 90 होगा। ओके, लोन पेयर ऐसे रहेगा, एग्जैक्टली 90 होगा सब। इसका ज्योमेट्री का नाम है स्क्वायर प्लानर, इसका नाम है स्क्वायर प्लानर होगा, ठीक है। इसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल, इसका होगा स्क्वायर प्लानर। ओके, और इसका भी स्क्वायर प्लानर होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir.
तो इसके बाद ये देखो, ये जेई एडवांस का कॉन्सेप्ट है, इस जेई मेंस में नहीं आता है नॉर्मली, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। sp3d3 ज्योमेट्री हम ले रहे हैं। sp3d3 स्टेरिक नंबर 7 होगा, तो q प्लस r बाई 2 7 हो गया। तो इसका दो ऑप्शन है, एक है 7 प्लस 0 मीन्स बॉन्ड पेयर इज 7, लोन पेयर इज 0, और एक ऑप्शन है बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर इज 1। ओके, बॉन्ड पेयर इज 6, लोन पेयर इज 1। ठीक है, तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री एग्जांपल इज IF7। ओके, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, तो लोन पेयर 6, बॉन्ड पेयर 1, so this can have the following geometry। ओके, तो 7 होने से तो इसका ज्योमेट्री रेगुलर है कि ऐसे आएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिड मैंने बताया था, याद है। तो अगर IF7 लेते हैं, IF7 एक पेंटागोन में रहेगा, एक पेंटागोनल प्लानर होगा, और एक फ्लोरीन ऊपर आएगा और एक फ्लोरीन नीचे आएगा। ओके, तो पेंटागोनल प्लानर ऐसे आया, एक फ्लोरीन ऊपर आ रहा, एक फ्लोरीन नीचे आ रहा। इज दैट क्लियर? तो पेंटागोनल प्लानर यहाँ पे आ रहा, एक फ्लोरीन ऊपर आ रहा, एक नीचे आ रहा, मतलब IF7 हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इट इज रेगुलर, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक लोन पेयर अगर आएगा, अब यहाँ पे लोन पेयर जो आएगा कहाँ पे पोजीशन लेगा, ये इक्वेटोरियल में लेगा कि एक्सियल में लेगा। लेकिन इसमें ये बेंट रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर एक्सियल लेगा। कहाँ लेगा बोलो? एक्सियल लेगा। एक्सियल देगा, हाँ सर। तो यहाँ पे डायग्राम में एक्सियल दिखा रहा है, लेकिन हम लोग तो TBP ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिड में पढ़े थे, लोन पेयर इक्वेटोरियल में रहता है। अब रूल उल्टा कैसे हो गया? एक्चुअली हम लोग याद रख के करेंगे तो गलत होगा। लोन पेयर एक्चुअली इक्वेटोरियल में इसलिए रहता था क्योंकि वहाँ पे उसको ज़्यादा स्पेस मिल रहा था, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन ये लोन पेयर क्या करेगा, उस जगह पर रहेगा जहाँ पे उसको फ्री स्पेस ज़्यादा मिलेगा। हम कंपेयर करते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर कहाँ रहता था? यहाँ पे रहता था लोन पेयर। सही है कि नहीं बोलो? हाँ सर। लेकिन ये जो अभी ज्योमेट्री आ गया, इसमें लोन पेयर बोल रहा है नहीं नहीं, एक्सियल में रहने से ज़्यादा स्टेबल है। तो रूल तो उल्टा हो गया। ऐसे क्यों हो रहा है? देखो देखो, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कितना था, इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कितना था? 120 डिग्री। एक्सियल इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कितना था? 90 डिग्री था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल, इसका तो 5 एंगल है, टोटल 360/5 कितना हो रहा है इसका बॉन्ड एंगल? इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितना है इसका? 75 डिग्री क्या? 72 डिग्री, माने 360/5 कर 72 होगा। हाँ। एक्सियल इक्वेटोरियल तो 90 है। ठीक है, तो ये बताओ कि इसका फ्रीडम कहाँ पे है? एक्सियल इक्वेटोरियल में है या इक्वेटोरियल में? फ्रीडम ज्यादा कहाँ पे है? एक्सियल इक्वेटोरियल में। हाँ, तो मोर स्पेस इसका। हाँ, एक्सियल इक्वेटोरियल में मोर स्पेस है, यहाँ पे मोर स्पेस है, उसको ज्यादा चांस जगह मिल रहा है, मोर स्पेस। ठीक है, यहाँ पे इसको मोर स्पेस कहाँ मिल रहा है? इक्वेटोरियल में मिल रहा है मोर स्पेस। ठीक है, तो बेंट्स रूल क्या बोल रहा है? बेंट्स रूल ये बोल रहा है कि लोन पेयर वहां पे रहेगा जहां पे उसको ज्यादा स्पेस मिलेगा, क्योंकि लोन पेयर मोटा है ना, लोन पेयर जो है वो थिक है, बल्कि है। ठीक है, तो लोन पेयर वहीं पर रहेगा क्योंकि लोन पेयर इज कंट्रोल्ड बाय वन न्यूक्लियस, सो इट इज बल्कि। ठीक है, इफ लोन पेयर इज कंट्रोल्ड बाय टू न्यूक्लियस, इट विल नॉट बी बल्कि, इट विल बी नैरो। ठीक है, so lone pair is controlled by one nucleus, so it is bulky, but bond pair is controlled by two nucleus, so it is not that much bulky. So lone pair will occupy that position wherever it is getting more space, more bond angle. तो यहाँ पे देखो, लोन पेयर का बॉन्ड इक्वेटोरियल में ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, तो ये कंफर्टेबल है, यहाँ पे रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ये ज्योमेट्री में देखो, लोन पेयर जो है
तो ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में है, एक्सियल इक्वेटोरियल में है या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में है? टेल मी। Sir, please repeat it again, sir. See, bond angle is more in equatorial 120. TBP geometry देखें, in TBP geometry bond angle is more in equatorial, so lone pair is lying in equatorial. That we have done already. ठीक है? But if you come to this geometry, which geometry? If you come to pentagonal bipyramidal, you will find more space in axial equatorial or equatorial. Axial equatorial. Yes, in axial equatorial more space means lone pair will prefer to stay there because it is bulky. मान लो कोई मोटा सा लड़का आ गया क्लास में बैठने के लिए, वो कहाँ बैठेगा? जहां पे ज्यादा स्पेस है वहां बैठेगा कि जहां पे कम स्पेस है वहां बैठेगा? तो ये ज्यादा स्पेस ऑब्वियस है, उसको तो ज्यादा स्पेस चाहिए, नहीं तो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो बैठ नहीं पाएगा, गिर जाएगा, नहीं तो वो इधर वो गिर जाएगा, नहीं तो कुर्सी टूट जाएगा, दोनों में एक होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, अगर लोन पेयर आता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन लेगा क्योंकि इसमें ज्यादा बॉन्ड एंगल है, क्योंकि वो कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे जब आएगा वो देखेगा कि कंफर्टेबिलिटी इक्वेटोरियल में नहीं है, एक्सियल इक्वेटोरियल में है, तो ये क्या करेगा, इक्वेटोरियल से भाग के एक्सियल में आ जाएगा। एक्सियल में ये ज़्यादा स्पेस, उसको कम एक्सियल में उसको क्या होगा, ये मिलेगा, उसको कंफर्टेबल स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो इसीलिए याद रखो कि इस टाइप का ज्योमेट्री में ये एक्सियल में आता है। ओके, तो ये जो मैंने बताया इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नोट्स दिया है, तुम लोग पढ़ लो। ओके, और पढ़ने से समझ में आ जाएगा। तो ये जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री का नाम हम लोग दे रहे हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये ज्योमेट्री होगा, ये एक्सियल में तो आएगा, लेकिन इसका नाम हम देंगे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब ऑक्टाहेड्रल से डिस्टॉर्शन होगा। ये एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, इसका 6 बॉन्ड है, तो ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। जब 6+1 होगा, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रहेगा। ओके, when lone pair is present stereochemically active s orbital, तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा, ये सब में परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा where the lone pair is present in stereochemically inactive s orbital, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। ठीक है, हाँ, तो 6+1 जो है हमारा थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है 5+2, तो 5+2 होगा, मतलब 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो XCF6F5, XCF5 माइनस है, शायद XCF5 माइनस या प्लस होगा। 8 से 5 बॉन्ड बनाया तो 3 बच गया, 3 बच गया तो 4 हो गया, माइनस होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। XCF5 माइनस, तो XCF5 माइनस में इसका 5 बॉन्ड पेयर रहेगा और 2 लोन पेयर रहेगा। तो अगर इस टाइप का ज्योमेट्री होता है तो कहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे लिखा है, देख लो। It appears contradict that the 2 lone pairs are at the axial position, इसमें 2 लोन पेयर है, वो एक्सियल पोजीशन में रहना है, while in case of CLF3 2 lone pairs are in the equatorial position. It can be understood by an alternative statement in Bend's rule. The orbital occupying more space around the central atom will have more S character. For TBP geometry, one axial orbital is having 3 neighboring orbital where all are at 90 degree, while one equatorial orbital is having 4 neighboring orbital, out of which they are 90 degree and other 2 are 120. तो इसका इक्वेटोरियल 120 है, टीबीपी ज्योमेट्री में बोल रहा है, एक्सियल इक्वेटोरियल 90 है बोल रहा है। हेंस इक्वेटोरियल ऑर्बिटल ऑक्युपाइज मोर स्पेस compared to axial orbital, जो कि TBP ज्योमेट्री में हुआ, and will have more S character. It is also experimentally supported in the fact that DPCL and DPCL in bond similar behavior. Okay. देखो यहाँ पे टीबीपी ज्योमेट्री है, टीबीपी ज्योमेट्री में इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ, अच्छा ये इग्नोर करो, ये जरूरत नहीं है,
This is extra. Okay. This part you don't read. This is not required. This is out of syllabus. From this part to this part. If you read, you will get confused. No need to read this. This is also not there in syllabus. Okay. So till this much you read. Okay. This is given. Next पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड. ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, C डबल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड H. तो ये है CH2, इसको बोलते हैं फॉर्माल्डिहाइड, इसको बोलते हैं. ओके, फॉर्माल्डिहाइड फिश का स्टोर करने के लिए फॉर्माल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मालिन यूज करते हैं, फॉर्माल्डिहाइड यूज करते हैं. फिश जो है ना, फिश को ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है फॉर्माल्डिहाइड यूज करके. तो ये जो फॉर्माल्डिहाइड है, तो फॉर्माल्डिहाइड में जो बॉन्ड एंगल है, क्या तीनों बॉन्ड एंगल इक्वल होगा? ये जो बॉन्ड एंगल है CH और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH, ये दोनों इक्वल होगा. XX ले लिए. क्या HCH बॉन्ड एंगल Y है, क्या XY इक्वल होगा? टेल मी. नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा. नहीं सर. तो ऑब्वियसली नहीं होगा सर. तो डबल बॉन्ड से बॉन्ड ज्यादा होता है, मतलब X इज ग्रेटर देन Y. तो X इज ग्रेटर देन 120 एंड Y इज लेस देन 120 होगा. ठीक है. तो यहाँ पे एक फ्लोरीन को लिया है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. अगर फ्लोरीन एटम लिया, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल 120 से ज़्यादा हो गया. यहाँ सिंगल बॉन्ड रिपल्सन कम होगा तो ये कम हो गया, 120 से कम हो गया. ठीक है. तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, ये बॉन्ड एंगल क्यों इतना है, ये कितना है, क्या रीज़न है. ठीक है. नहीं तो पूछेगा दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, ऐसा पूछेगा. ठीक है, क्लियर. अब ये दोनों कंपेयर करते हैं. हाँ, ये तो 120 से ज़्यादा होगा, ये ग्रेटर देन 120. ये भी 120 से ज़्यादा होगा, ये 120 से कम होगा. लेकिन इसका एंगल कंपेयर करेंगे, ये ज़्यादा एंगल हो गया. ऐसा क्यों? Tell me. सर क्या पूछे? तो क्लोरीन का मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. फ्लोरीन से कम है. हाँ, सही बोल रहे. देखो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर को अपने ओर खींच लेगा. क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इतना नहीं खींचेगा. तो जो बॉन्ड पेयर है वो सेंट्रल एटम के पास रहेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से वो बॉन्ड पेयर को अपने ओर खींचेगा, तो बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से दूर रहेगा. सेंट्रल एटम से दूर रहने से रिपल्सन क्या होगा, कम होगा. इज दैट क्लियर? क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इतना बॉन्ड पेयर को इतना ज़्यादा नहीं खींचेगा, तो बॉन्ड पेयर विल रिमेन क्लोजर टू सेंट्रल एटम मोर एज कंपेयर टू द CF2O केस. So here greater repulsion, so bond angle is more. Is that clear? Next, ये P डबल बॉन्ड O Cl3, इसमें तो 4 बॉन्ड पेयर है. हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 4 बॉन्ड पेयर. तो 4 बॉन्ड पेयर होने से लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए. 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए. लेकिन इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन इज मोर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्सन. तो Y इज मोर देन X. तो Y इज मोर देन X, इजंट इट? Y हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, X हो गया सिंगल बॉन्ड रिपल्सन. तो सिंस Y इज मोर देन X, so what can we say? So Y is more than X. This Y should be greater than 109.5 and X is less than 109.5. So this angle is found to be 103.3, means less than 109.5. And this will be more. It's not mentioned, but it should be more. Is that clear? हाँ सर. Yes, यहाँ sir. पे भी देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन इज मोर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्सन. मतलब यहाँ पे Y जो है ये X है, तो यहाँ पे Y X से ज्यादा होगा कि नहीं, बोलो. हाँ सर. Y X से ज्यादा हो गया,
तो ये यहाँ पे भी y होगा, ये y होगा, ये y होगा, ये x होगा। तो x plus y should be 360. If all are equal, then each should be 120. But since y is greater than x, it will be more than 120. It will be less than 120. Is that clear? Yes, sir. लेकिन ये जो सॉल्फेट होता है, ये बॉन्ड एंगल सब 109.5 है। ऐसा क्यों? यहाँ पे भी तो ये भी 109.5, सब 109.5। ऐसा क्यों? सब बॉन्ड एंगल 109.5। सब 109.5 होने से 360 से ज्यादा हो जाएगा तो? हाँ, नहीं ये तो 4 बॉन्ड है ना, ऐसा करके ये टेट्राहेड्रल से ऐसे रहेगा ना, ऐसे रहेगा। ओह ठीक सर। तो ये तो टेट्राहेड्रल 3D स्पेस में, तो ये तो एक प्लेन में नहीं है ना, एक प्लेन में होता तो 360 होता सब मिला के। तो ये टेट्राहेड्रल से पे ऐसे रहेगा, तो ऐसे रहेगा, तो जो तो डबल बॉन्ड रिपल्सन ज़्यादा होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से तो सब इक्वल कैसे हो गया? ये रिपल्सन तो इक्वल नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हम जानते हैं डबल बॉन्ड रिपल्सन इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्सन। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल मिनिमम होना चाहिए, ये बॉन्ड एंगल सेकंड मिनिमम, और डबल बॉन्ड रिपल्सन मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन सबका बॉन्ड एंगल इक्वल है, ऑल आर इक्वल। क्यों ऐसा है बोलो? सर बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा शायद। बॉन्ड लेंथ भी सेम है, बॉन्ड लेंथ सबका बॉन्ड लेंथ भी सेम हो गया, बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड सर एंगल सेम है। ऐसे क्यों? क्योंकि इसका रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस तो मैंने पढ़ाया था ना। हाँ सर रेजोनेंस पढ़ाया था आपने। हाँ हाँ सर। सर। तो इसका रेजोनेंस होता है, तो इसका बहुत सारा स्ट्रक्चर आएगा, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो एक्चुअल है। कोई भी मॉलिक्यूल का अगर हाँ। रेजोनेंस होता है तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल नहीं होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर होगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में मैंने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाया था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर अप्लाई करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर पार्शियल डबल बॉन्ड का आएगा। तो मतलब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है ये है। तो इसमें सबका बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा और सबका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होगा, बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा, सबका जो भी पार्शियल डबल बॉन्ड रिपल्सन क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड, ये रिपल्सन सबका होगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड रिपल्सन सबका इक्वल होगा। सबका रिपल्सन अगर इक्वल होगा तो बॉन्ड एंगल इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो। हाँ सर। Sir, can you please say this once more? वन मोर एग्जांपल आई टेक। सपोज हम कार्बोनेट ले रहे हैं, ये कार्बोनेट का, तो हम बोलेंगे कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन हो रहा है, ये भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो रहा है, तो इसको मैं y ले लिया, इसको y ले लिया। ये सिंगल बॉन्ड रिपल्सन हो रहा है, x ले रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं, y बॉन्ड एंगल शुड बी मोर देन x। ऐसे बोलेंगे कि नहीं? एज पर द बेंट्स रूल, एज पर द वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बोलेंगे कि नहीं? Yes. लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट y इज इक्वल टू x। व्हाई लाइक दिस? इसमें y इक्वल टू x देखा गया एक्सपेरिमेंट से। हमारा थ्योरी से आ रहा है नहीं y x से ज्यादा होगा, क्योंकि थ्योरी तो बेस्ड ऑन लॉजिकल एजम्पशन, तो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये y इक्वल टू x इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका क्या होगा? रेजोनेंस होगा। इसका देखो रेजोनेंस होगा, ऐसे करो, इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बोनेट को सबका बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ये उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, -2/3, ये होगा -2/3, ये -2/3। तो सब में पार्शियल डबल बॉन्ड रिपल्सन है, और सबका रिपल्सन इक्वल होगा। इक्वल होगा क्यों इक्वल होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में? बोलो, टेल मी।
Is it equal or unequal in resonance hybrid? Sir, equal. So bond length equal, bond order equal, repulsion equal, then why not the bond angle? Bond angle has to be equal. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मतलब ये देखना है कि जहां पे रेजोनेंस होगा वहां पे बॉन्ड एंगल इक्वल होगा, जहां पे रेजोनेंस नहीं होगा तो वहां पे इस टाइप का केस हो सकता है। मतलब ऊपर जो मैंने दिखाया क्या है, रेजोनेंस नहीं होता है, नहीं होता है, ये सब में मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हुआ, इसीलिए बॉन्ड एंगल में का वेरिएशन आएगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो ये सब जेई एडवांस के लिए थोड़ा सा हाई लेवल है, तो इसका नोट्स मैंने भेजा हुआ है, थोड़ा पढ़ लो। ओके, इसको पढ़ लो, इसको अच्छा से 2 बार पढ़ लेना है, पूरा समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो। ओके, ऐसे ही दिया है, जिसमें रेजोनेंस होगा बॉन्ड एंगल इक्वल होगा, जहां नहीं होगा इक्वल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ाया था वो यहाँ पे आएगा। व्हेन द सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर इज सेम विथ डिफरेंट सराउंडिंग एटम। ओके, तो क्वेश्चन ये आया है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। NH3 NF3 का बॉन्ड एंगल पूछा है, NH3 और NF3, तो इस दोनों में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम है। ये है NH3 NF3। तो NH3 NF3 में ऐसा है, तो NH3 NF3 देखो, तो किसका बॉन्ड एंगल, NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों हुआ? Why the bond angle of NH3 is more? Fluorine is more electronegative in comparison to hydrogen. Yes. Then what? Then So it will be closer to the central atom than hydrogen. Then hydrogen. yes, It will pull more towards itself. yes. So you understood, but you have to express with correct reason, with correct wording. Then only you will get marks in your school exam. School exam में तो proper wording और sentence लिखना है, ठीक है? और जेई में खाली हमें ऑप्शंस सेलेक्ट करना है, कौन सा सही है नहीं है। तो इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज गुड, यू कैन गेट थ्रू, डू वेल इन जेई एग्जाम, बट इन ए स्कूल एग्जाम यू हैव टू राइट प्रॉपर रीजन। तो देखो, तो इफ यू कंपेयर बोथ NH3 एंड NF3, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम सेम। तो इफ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द बॉन्ड पेयर will remain away from central atom in NF3 as compared to NH3. But in NH3, the bond pair will remain closer to central atom since nitrogen is more electronegative than hydrogen. So if bond pair remains closer to central atom, it causes greater repulsion. If it causes greater repulsion, bond angle will be more. So bond angle is more. Is that clear? Reason also written here. You can go through it. You can remember or you can make a note of it. So water and F2O. Let us take water and F2O. बॉन्ड एंगल बिटवीन वाटर एंड F2O। लोन पेयर को मैंने ऐसे कर दिया ताकि दिखाई देगा, डॉट करने से कभी कभी दिखता नहीं है ना, मैंने लोन पेयर को ऐसे कर दिया। ओके, तो इफ यू कंपेयर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड पेयर इज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, हियर बॉन्ड पेयर इज क्लोजर टू सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड एंगल विल बी मोर, ग्रेटर रिपल्सन। तो वाटर का 104.5 है, F2O का 103.1 है। Is that clear? Yes, sir. So Yes, sir. same reason given for this, you can go through this. Okay. Okay, sir. Now, what bond angle between this? Only last class I told you PF3. Suppose हम लोग PF3 ले लिए, PF3 and PCl3 and PBr3 and PI3. Okay. Now you see, fluorine is more electronegative. It will pull the bond pair away from the central atom more effectively, and the bond pair is very close to fluorine atom.
Fluorine is little less, it will be closer to central atom. Bromine is more or less, it will be coming still closer to central atom. In phosphorus, it will come more closer to central atom. So in which case greater repulsion, phosphor Pi3 or PF3? Which one greater repulsion, Pi3 में है कि PF3 में है? तो PF3 में बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के पास चला गया, मतलब सेंट्रल से दूर चला गया, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है कि नहीं? तो ऑल थिंग्स यू मस्ट रियलाइज विद इन योरसेल्फ, यू मस्ट गेट द फीलिंग क्या हो रहा है. आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्ड पेयर को इतना खींच नहीं पाएगा, तो अपने पास नहीं आएगा, तो फास्फोरस के पास ज्यादा रहेगा. तो अगर सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर रहेगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, या बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के पास रहेगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा? टेल मी. PF3 का ही होना चाहिए तो. नहीं, बॉन्ड पेयर अगर सर रिपल्शन पीआई में ज्यादा होगा. हाँ, बॉन्ड पेयर जितना सेंट्रल एटम के पास रहेगा उतना रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है? अगर सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर आ गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, रिपल्सन ज्यादा होगा ना. अगर बॉन्ड पेयर अगर सेंट्रल से दूर चला गया, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन लेके दूर चला जाएगा, फ्लोरीन जो है वो क्या है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो क्या करेगा, इंडिया से सब गोल्ड लेके चला जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? इंडिया में पहले गोल्ड इतना था, जैसे कि अभी केरला में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, सुने हो कि नहीं? केरला में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में जितना हाँ सर, जितना गोल्ड है, हमारा जितने भी टेम्पल है, जितने जगन्नाथ टेम्पल पुरी और ये गुजरात में एक टेम्पल है, तो जितने भी टेम्पल है सब टेम्पल में इंडिया में उतना ही गोल्ड पहले था. लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया को रूल किया 200 इयर्स, तो सब टेम्पल से गोल्ड लेके चला गया और उनका देश में रख दिया. इवन कोहिनूर जो डायमंड था वो इंडिया में था, उसको भी ले लिया. तो क्या हुआ, इंडिया पुअर हो गया और यूरोपियन कंट्रीज रिच हो गए, बिकॉज ऑफ दे हैव टेकन वेल्थ फ्रॉम अस, दे रूल फॉर 200 इयर्स, दे हैव एक्सप्लॉइटेड एंड टेकन एवरीथिंग फ्रॉम अस. तो ऐसे ही फ्लोरीन ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है? फास्फोरस इंडिया है, तो फास्फोरस इंडिया है, फ्लोरीन ब्रिटिश गवर्नमेंट है. तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, फ्लोरीन फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा, ठीक है? जब फ्लोरीन फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, फ्लोरीन से दूर चला गया. अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर फ्लोरीन से दूर चला गया तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर फ्लोरीन से दूर चला गया तो दूर में रहेगा, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, या आयोडीन में जो कि बॉन्ड पेयर फास्फोरस के पास है तो ज़्यादा रिपल्सन होगा? किस में ज़्यादा रिपल्सन होगा बोलो, Pi3 और PF3? Pi3 ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम के पास है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर मोर इन सेंट्रल एटम, क्योंकि आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है. तो आयोडीन जो है ना, आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो आयोडीन क्या किया, आयोडीन इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया तो फास्फोरस के पास रह गया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है तो ज़्यादा रिपल्सन, इसलिए ज़्यादा बॉन्ड एंगल. तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस लाइक दिस. इज इट क्लियर? Yes sir. तो इसको भी बेंड्स रूल, गिलेस्पी जो है वो बेंड्स रूल जो बनाए वो भी एक्सप्लेन कर दिए इसको. तो एक बेंड्स रूल आल्सो कंसिस्टेंट विद गिलेस्पीज वेस्फोर थ्योरी मॉडल. वेस्फोर थ्योरी के हिसाब से ये आता है जो कि गिलेस्पी ने बताया, एंड उसका एक रीजन बताया कि द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताए थे. तो more the electronegativity atom not only prefers to stay away from the orbital having more p character, but also can increase the p character in the attached orbital from the central atom depending upon the circumstances. This applies
the increase in bond angle and decrease in bond angle. This will decide the bond angle. Okay. So suppose we are changing the central atom. Suppose we kept the central atom same, surrounding atom different. Now we can change the central atom, keep the surrounding atom same. Okay. In that case, how it will be changing? Now see this example. The second case, let us see. NH3, PF3, S3 and SbS3. तो इसमें क्या है, सेंट्रल एटम ही चेंज हो गया, NH3, ओके, और PH3, ओके, ASH3, ये तीन में लेता हूँ, ठीक है. फोर्थ वन यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ. तो NH3 में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? टेल मी. Which is more electronegative, nitrogen or phosphorus? Down the group, electronegativity decreases or increases? Decreases. Decreases. So nitrogen is more. Then nitrogen होगा. Nitrogen is more electronegative. हाँ. तो अगर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन क्या करेगा? जो बॉन्ड पेयर को अपने पास रखेगा, है कि नहीं? तो बॉन्ड पेयर को अपने पास, रिपल्शन ज्यादा होगा. रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर. तो इसीलिए NH3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा है. हाँ सर. तो जब हम नीचे आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस. So when electronegativity of central atom decreases, the bond pair goes away from central atom. So if bond pair goes, repulsion decreases. yes, bond pair goes away from central atom, so repulsion decreases. If repulsion decreases, bond angle also decreases. See, the bond angle is changing. Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Sir, does this remain constant? I mean, कि जो difference है वो decrease हो रहा है, वो क्या constant रहता है? मतलब decrease ही करेगा, बीच में कभी increase नहीं करेगा? नहीं, decrease करेगा. Okay, sir. तो ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन उसके बीच में एक ड्रागोस रूल, एक ड्रागो साइंटिस्ट जो है वो अपना रूल बता दिए इसमें. तो ड्रागो हैज गिवन ए रूल दैट इज नोन एज ड्रागोस रूल. तो व्हाट इज ड्रागोस रूल? तो ड्रागोस रूल सेज दैट इफ द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, दैट इज ट्रू, डिक्रीजेस, बट फर्स्ट में डिक्रीज कितना चेंज हुआ देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, हाउ मच चेंज, 107 से 93.8, बट मतलब अराउंड 7, अराउंड 13 डिग्री. इसमें 13 डिग्री डिक्रीज हो रहा है. इसमें कितना डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री ओनली. इसमें कितना डिक्रीज हो रहा है? 0.5 ओनली. इसमें देखते हैं कितना डिक्रीज हो रहा है. इसमें 12.5 डिक्रीज हो रहा है. इसमें कितना डिक्रीज हो रहा है? 1 डिग्री डिक्रीज हो रहा है. इसमें कितना डिक्रीज हो रहा है? 1.5 ना, 1.5. मतलब ये जो बॉन्ड एंगल है, ये सब बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 हो रहा है. दिस इज क्लोज टू 90. इज दैट क्लियर? So actually Dragos rule is not there in syllabus. This is out of syllabus. But if you read Dragos rule, you will be in advantages, because sometimes question may come in from comprehensive passage. So they will give questions from Dragos rule that time. If you know Dragos rule, you can easily answer. Okay. So what is Dragos rule? Dragos rule says that after nitrogen, in all these cases, there will be bond angle close to 90. If bond angle is close to 90, then for these cases, no hybridization. For these cases, what? No hybridization. For these cases, there will be what? Hybridization नहीं होगा. That is called Dragos. Is that clear? PS3, ASS3, SbS3, H2S, H2SC, H2T, there is no hybridization.
That is told in Drago's rule. Okay, is that clear? Yes, sir. Now I'll go to white page to explain in more better way. See, we have told that in PS3 no hybridization. Drago has told no hybridization. What is the justification? Now let us take, suppose this is having hybridization. So if it is having hybridization, in PS3 you count TVE how much? Total valence electron, phosphorus 5. Acha, this PS3 we cannot do by that divide by 8 method because it is having hydride. So we can do another method. That is second method I told you. Number of surrounding atom. Yes. Okay. 3. So two methods for finding hybridization have I told na? दोनों method मैंने बताया. Yes, sir. Yes, sir. Achha. Yes, sir. Then you see hybridization is steric number is equal to surrounding atom plus half into G minus V plus or minus X. ये था. तो Yes. surrounding atom is 3 plus half into ground state valency electron of central atom phosphorus 5 minus valency of surrounding atom. Surrounding atom valency 1 into 3 3. Charge is 0. 0. So it's coming 4. 4. So total 4 means hybridization should be sp3. So if hybridization sp3, pH3 should be like this. Okay. So pH3 3 sigma bond. If pH3 is 3 sigma bond, one lone pair. So 3 bond pair, one lone pair. So sp3 hybridization means bond angle is now sp3 hybridization means bond angle should be how much? Closer to 109.5 degree. Since one lone pair, 3 bond pair, it will be less than 109 degree 28 minute, but it is close to 109.5, isn't it? But here the bond angle is coming closer to what? Closer to 90 degree. So it is not matching with experimental value. Now we'll take suppose no hybridization. Suppose हम लोग consider करेंगे इसका hybridization नहीं है, ठीक है? इसका हाइब्रिडाइजेशन होने से क्या कर रहे थे हम लोग? फास्फोरस ले रहे थे, क्या है? 15 है, 3s2, 3px1, 3py1, 3pz1. हम लोग क्या किए? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ऐसे किए. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे किए. sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे किए. तो एक लोन पेयर है तो यहाँ पे रहेगा और बाकी ऐसे रहेगा. ऐसे हम लोग किए और ये हाइड्रोजन से ओवरलैप होगा. इज दैट क्लियर? ये हाइड्रोजन से ओवरलैप होगा. तो हम लोग सोचे कि ऐसे होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा PS3. ओके. लेकिन व्हाट ड्रागो हैज टोल्ड, ड्रागो टोल्ड दिस इज रॉन्ग. ही हैज चैलेंज्ड हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी. ही टोल्ड दिस इज रॉन्ग. He told that there is no hybridization. 3s2 और 3px जो है, 3py जो है, 3pz जो है, like this, 3px, 3py, 3pz. So this will not take part in hybridization. No intermixing of orbitals. No hybridization. Hybridization नहीं होगा. Hybridization नहीं होगा तो ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगा. डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऐसे ऐसे ऐसे. तो ऐसे ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा.
मतलब px H overlapping, px H overlap, y overlapping, pz y overlapping. Sorry, px hydrogen overlapping, py hydrogen overlapping, pz hydrogen overlapping. So this overlapping will occur. Is that clear? सर समझ नहीं आया, फिर से रिपीट कीजिए ना. हाँ. See, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो समझ में आ गया ना. हाँ हाँ वो समझ गया. इसमें ड्रागो ने क्या बताया, ड्रागो बताया कि नहीं हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. ड्रागो बताया हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा मतलब sp3 मिक्सिंग नहीं होगा. अगर sp3 मिक्सिंग नहीं होगा ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग करेगा विदाउट मिक्सिंग. ये विदाउट मिक्सिंग डायरेक्ट ओवरलैपिंग करेगा. तो मतलब px क्या है, इसका px ऐसा है, py ऐसा है और pz ऐसा है. तो ये फास्फोरस का है. तो फास्फोरस का px py pz जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनेगा, ये प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल. तो ये प्योर p ऑर्बिटल क्या करेगा, हाइड्रोजन से ओवरलैप होगा. ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से ओवरलैप होगा. ये हाइड्रोजन से ओवरलैप हुआ, ये भी हाइड्रोजन से ओवरलैप होगा, ये भी हाइड्रोजन से ओवरलैप. ये तीनों हाइड्रोजन से ओवरलैप होंगे. तीनों हाइड्रोजन से ओवरलैप होंगे तो इसका px अगर ऐसा है, py ऐसा है और pz ऐसा है. अगर तीन px py pz तीन प्योर p ऑर्बिटल रहता है तो px और 1s ओवरलैपिंग हो रहा, py 1s ओवरलैपिंग होगा, pz 1s ओवरलैपिंग होगा. और px py pz क्या है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है. अगर ये ओवरलैपिंग नहीं होता है तभी बॉन्ड एंगल 90 हो सकता है. अगर ओवरलैपिंग होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तो बॉन्ड एंगल 90 नहीं हो सकता है. कितना हो सकता है, 109.2 109.5 के आसपास हो सकता है. क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल इसके आसपास होगा. लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो प्योर p ऑर्बिटल रहेगा. प्योर p ऑर्बिटल रहेगा तो प्योर p ऑर्बिटल s से ओवरलैपिंग करेगा. तो प्योर p ऑर्बिटल अगर s से ओवरलैपिंग होगा, px py pz के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है. px py बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, py pz बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री है. इज दैट क्लियर? यस सर, नाउ इट्स क्लियर. Yes, sir. अगर ओवरलैपिंग, अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तब बॉन्ड एंगल 90 नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होने से बॉन्ड एंगल इसके आसपास आएगा. अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तभी जाके बॉन्ड एंगल 90 हो सकता है. और ये ड्रागो ने बताया, ये हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को चैलेंज किए और उनका थ्योरी वो तो जस्टिफाइड है, बॉन्ड एंगल 90 हो रहा है. ठीक है. लेकिन ड्रागोस रूल जो है वो सिलेबस में नहीं है, इसको अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा. लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो ड्रागोस रूल भी पढ़ लेते हैं. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग तो अच्छे स्टूडेंट हो तो ड्रागोस रूल थोड़ा बहुत पढ़ लो, अगर समझ में आएगा तो उसको कर लो, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ड्रागोस रूल इतना ही बताया कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और बॉन्ड एंगल 90 के आसपास रहेगा. इज दैट क्लियर? सर यस हाँ सर. बोलो. सर तो इसका रीजन कुछ दिया कि नहीं? इसका रीजन बॉन्ड एंगल ही है. हाँ, उसका रीजन आगे आएगा, पॉइंट्स कुछ बताए. ये जो बोले हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कि नहीं, तो आज तक तो कोई देखा नहीं है, हम लोग गेस कर रहे हैं. तो ये बोले कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और उसका रीजन भी वो बताए. क्या रीजन है, हम लोग आगे देखते हैं, फिर मैं शेयरिंग में जाता हूँ. तो सब लोग पूछे कि आप बताइए इसका रीजन क्या है, आप कैसे मान लेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं होगा. तो इसका रीजन ये दिए, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अबव वी कैन एक्सप्लेन द फैक्ट्स. ये फैक्ट्स है जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा को प्रूव कर रहा है. तो अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो उसका जो बॉन्डिंग कर रहा है उसमें p कैरेक्टर बढ़ जाएगा.
मतलब ये प्योर p ऑर्बिटल है, p कैरेक्टर बढ़ गया तो s कैरेक्टर कम हो गया, तो s कैरेक्टर कम होने से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, ठीक है, तो उसका जो भी बेसिक स्ट्रेंथ वो कम होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। एक थ्योरी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अगर हम लोग ले रहे हैं तो PH3 इज लेस सॉल्युबल देन NH3, ठीक है। तो PH3 NH3 को लेंगे तो सॉल्युबिलिटी देखेंगे, तो सॉल्युबिलिटी में NH3 ज़्यादा सॉल्युबल है, NH3 पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है, PH3 कम सॉल्युबल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, PH3 में नो हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होने से ये पानी से डिजोल्व होगा, ये ज़्यादा पोलर होगा। ओके, इसका S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़े हो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हो सकता है। ओके, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये चीज़ बताया। और एक है, द फॉर्मेशन ऑफ PH4 इज डिफिकल्ट कंपेयर टू NH4 विच इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट। अगर NH3 को पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, NH4 प्लस आएगा। PH3 को पानी में डिजोल्व करोगे तो PH4 प्लस आएगा। अच्छा, अभी टाइम हो गया है तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। इसका रीज़न जो है क्यों ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसका रीज़न जस्टिफिकेशन मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं होगा। इसका जितना पॉइंट्स है कम से कम 15 मिनट्स लेगा, और मैं आज थोड़ा सा बता के फिर नेक्स्ट क्लास में करूँगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तक मैं रखता हूँ ड्रागोस रूल। तो ड्रागोस रूल क्या है कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस केसेस। ओके, व्हाई फॉर दिस केसेस नो हाइब्रिडाइजेशन, दैट रीजंस आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो Okay, sir. whatever Okay, sir. whatever attachment I've given, you do reading by today itself only, because these are very important and also difficult concept. ये जो सर एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। तो ये जो चीज़ मैंने बताया इसको अच्छा से रीडिंग कर लो, लेकिन ये जो मैं ब्रैकेट दिया इसको इग्नोर करो, ये आउट ऑफ सिलेबस है और ये कंफ्यूजिंग है, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको इग्नोर कर दो, इसको छोड़ के बाकी पढ़ लो, ठीक है। अभी क्या ठीक है sir. राइट, then I am closing for today. Thank you, Sir, sir. sir, Yes, Thank you, Sir. yes. Sir, sir. sir.